पिटता है, इसका मतलब है कि ये खुद से कुछ काम नहीं करता, तो ये लिविंग है बट ये नॉन डूअर है। इफ योर सब्जेक्ट इज नॉन डूअर दैट इट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस, तो ये पैसिव वॉइस कहलाता है। और इसमें हम कभी विद ग्रीन के अलावा कोई भी वर्ब यूज नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट यूज एनी फॉर्म ऑफ दी वर्ब, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है टेंस, एक्टिव में हम सारे फॉर्म यूज करते हैं वर्ब के, और पैसिव में सिर्फ विद, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर आफ्टर दैट वी, ओके। देन हाउ विल आई टेक इट, इज written, is written, okay, and I am giving you some more example. मैंने उसे एक पत्र लिखा, नेक्स्ट वन इज यस, मैंने उसे एक पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर टू हिम, आई रोट अ लेटर टू हिम। अब यहाँ पे हमने टू क्यों यूज किया, ठीक है, इसमें दो ऑब्जेक्ट है हमारे, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हमारा कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आई रोट हिम अ लेटर। जब भी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यानी लिविंग ऑब्जेक्ट को बाद में रखेंगे, तो वहाँ पे हमें से आपको लगाना पड़ता है, और अगर ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं तो नहीं लगाना, ठीक। हाँ, इसका क्या होगा, पत्र लिखा जाता है, it is non-dual and it is called passive voice.
student, he is an engineer, he is a singer, he is a writer, he is a doctor. Okay. She is a teacher, she is a student, she is an engineer, she is a singer, she is a writer, she is a doctor. Okay. We cannot use here if because these are we use all these forms here for living person. Then like not they. With they we will not use any article, and we will use here like plural form of any object. Teacher. They are teachers, they are students, they are engineers, they are singers, they are writers, they are doctors. Okay. In the same we will use here. You can say this is noun. Okay. And we can use here adjective. Honest. Okay. I am honest. I am intelligent. I am clever. I am wise. I am tall. I am fat. Okay. There are two meanings of tall. This one is fat and this one is tall. This is a word. Okay, given. And this is called adjective. Next one is honest, is intelligent, is clever, is wise, is tall, is fat. After that, they will not use it. She is honest, she is intelligent, she is clever, she is wise, she is tall, she is fat. Okay. They are honest, they are intelligent, they are clever, they are wise, they are tall, they are fat. After that, we are honest, we are intelligent, we are clever, we are wise, we are tall, we are fat. Okay. Right now I want to know from you about some articles A and N. Here we will use article A for N. Like I am giving you some example. What we will pronounce it? How we will pronounce it? A. What is the first letter sound? From starting, it is from the starting point is Ka. It is called vowel sound. Okay. Then what we will use here? Article N. N RSS member. N RTI rule. N RBI necessary.
And what we will use, because its first letter is ka, it is consonant sound. Then what we will use here? A. You can confuse any person. This type of person. And I will give you some more examples. What we will use the first one, and second one is the one is, and third one, and yes, that one. This one is correct, this one is correct, this one is correct, but this one is incorrect. Okay, because its pronunciation is not here. Its pronunciation is here. H is silent here. Then what we will use here? And. Okay. Why we will use here and what is its first pronunciation sound is a, because we will write it like and. Okay, first letter pronunciation is starting from a, that's why we use here and. Vowel sound. There are two pronouns of this word. You know where we will use this one and we will use this one. Are you sure? Both are the. Its pronunciation is only da and d. And we are not talking about article. Right now we are talking about its pronunciation. Where we will like pronounce it D and where we will pronounce W.
vowel sound. If we are using the before the any noun or noun, before the any noun, then what we will use the and what we will pronounce it. If your first letter sound, not letter, first letter sound is vowel sound, then we will use it the. Okay, we will speak it the. Okay, in the same way we will speak it college, the doctor, and ये तो सुना होगा आपको कई बार, ये लिखा होता है ना द बॉय, इसको हम दा भी पढ़ते हैं और डी भी पढ़ते हैं. I will give you some example and you will translate. ठीक है, मैंने उसे बुलाया. मैं उसे रुलवाता हूँ. जैसे कि एक हो गया हंसना, दूसरा हो गया हंसा. ऐसे हो गया इधर उधर हो सकता है कभी. ठीक है, जरूरी नहीं है कि सेम ही हो, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ये तो डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ ही होता है. ठीक है, हंसना रोना. ठीक है, ये जैसे कि मैंने एक सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे आई, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे आई लाफ. मैं हंसता हूँ, मैं हंसाता हूँ, क्या है आई बट यहाँ पे यूज करना पड़ता है, तो ये डायरेक्ट नहीं होता. मैं हंसाता हूँ तो वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ता है, तो मैं उससे हंसाता हूँ. आई मेक हिम लाफ, इसमें है मैं उसे हंसवाता हूँ. इसको हम आई गेट हिम लाफ. ओके, क्योंकि इसमें कुछ ही ध्यान से समझना है. एक तो होता है कि इसमें मैं खुद ही कुछ एक्शन कर रहा हूँ, जो सब्जेक्ट है आपका वही कुछ एक्शन कर रहा है. ठीक है, तो हम डायरेक्ट यूज कर देंगे मेक का उसके साथ. लेकिन अगर ये सब्जेक्ट किसी अदर तीसरे पर्सन से काम करवा रहा है, ठीक है, वहाँ पे हम क्या करेंगे यूज गेट का, जैसे हंसवाना. तो यहाँ पे एक चीज़ और होती है, यहाँ पे दोनों ही मौजूद होते हैं. ठीक है, सॉरी इसके साथ भी, इसके साथ. ठीक है, जैसे ये वाला है, इसमें क्या होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं. इस वाले में जो डूअर होता है वो गायब होता है. ठीक है, मैंने इसमें क्या बोला, मैं उसे हंसवाता हूँ, जो काम कर रहा है हंसवाने वाला है. ठीक है, क्या होगा आई गेट हिम लाफ. ठीक है,
क्या है आपका इस सेंटेंस में? इसमें हमारे इस सेंटेंस में कौन सा स्ट्रक्चर यूज हुआ है? क्या है इसका मतलब क्या है? एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, एंड दिस पेन इज ब्रोकन, इसका हिंदी क्या होगा? हिंदी के हिसाब से नहीं, वैसे पैसिव वॉइस आप कह सकते हो, लेकिन अगर इसका ये हिंदी हो गया ना तो ये पैसिव वॉइस नहीं, ठीक है? दिस पेन इज ब्रोकन, ठीक है? और जैसे कि मैंने एक और वो है सोया हुआ है, सोया हुआ है, ये गलत है पहले तो। दूसरे वाले की हिंदी क्या होगी? दिस पेन इज ब्रोकन। अगर आप पैसिव वॉइस में हिंदी बनाते हैं, ठीक है, ये तो पैसिव वॉइस नहीं है, इतना मैंने बताया, ये पैसिव वॉइस है। हिंदी इसलिए लिख दी ना, इसलिए पैसिव वॉइस है, वैसे तो है, लेकिन हिंदी अगर लिख दी, हिंदी सही है इसकी, ठीक है, तो इसको पैसिव वॉइस मानते हैं। इसकी हिंदी क्या होगी? ये है पेन थोड़ी गई नहीं, थोड़ा जाता है, ये है पेन थोड़ा जाता है, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। ये है पास्ट पार्टिसिपल, और ये इसमें कई चीजें होती है, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीएंड सेम होते हैं, ठीक है, ये दोनों सेम होते हैं। ऐसे ही पैसिव वॉइस और पास्ट पार्टिसिपल सेम होता है, सारे नहीं, लेकिन किसी किसी, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, उसका सेम हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का, ठीक है। तो ये आपका क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल का और प्रेजेंट इंडेफिनिट का उसका सेम रूल होता है, इसका दोनों का रूल सेम होता है, सब्जेक्ट प्लस ये वाला सेंटेंस वो है सोया हुआ है, और नेक्स्ट का सजाया हुआ है। वो है सोया हुआ है,
कर सकते हैं उसको आई डेकोरेट हाउस। इससे अच्छा तो सेंटेंस बन नहीं सकता है, इससे अच्छा नहीं बन सकता है। ये कौन सा है टेंस? कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट गिवन है ना, तो गिवन में तो कभी ऐसे आता ही नहीं कि हुआ है। टेंस नहीं, देखिए ये डूअर है, डूअर का मतलब ये फिक्स है कि आपका टेंस है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा टेंस है। आई है अब ऐसे भी कह सकते हैं इसको मैंने कहा सजा दिया है, मैंने सजाया हुआ है ऐसे। तो दो और हम आपसे हिंदी पूछेंगे से पूरे बता दें जैसे आईएनजी फॉर्म की वर्ब यूज हुई है और यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म की वर्ब यूज हुई है। कौन सा है? वाला क्या है? पार्टिसिपल। ठीक है, कौन सा पार्टिसिपल? ये वाला क्या है? रिप्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसीलिए कहते हैं अब मैं आपको बताता हूँ। कभी भी अगर हिंदी ऐसे आती ना, गाना गाना, एक गाना आपका सॉन्ग हो गया, लिखना, इसी वर्ब के अंत में अगर हमारा ना लग के आ रहा है तो उसके लिए अगर हम आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको जीरड कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? चलो आपको नहीं पता है क्या, कुछ भी नहीं पता, ये भी भूल जाओ आप, ये भी भूल। अब आप कैसे पहचानोगे इसको अगर आपको डायरेक्ट पहचानना हो? जीरंट को हम क्या कहते हैं? ये वर्बल नाउन होता है, ऐसा नाउन यूज होता है जीरंट, ठीक है। और एडजेक्टिव की तरह यूज होता है हमारा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को ऐसे तो जितने भी हमारे जीरंट होते हैं वो कैसा नाउन। क्या पहचान आप कभी भी क्या सजेशन करोगे? कैसा भी ना हो आप, और कैसे कैसा कैसे कैसे से क्वेश्चन कर लो, कितना से भी मिल जाता है, कितना भी, कैसे, ठीक है। अब आप इसको देखिए, मुझे क्या पसंद है या मुझे क्या गाना पसंद है,
G1 ठीक है। इसमें मुझे कैसे से आंसर मिलेगा, ठीक है। मैंने उसे डांस करते हुए देखा, मैंने उसे कैसे देखा, डांस कर कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। आई कहाँ से आ गई, आपको करेक्ट इनकरेक्ट करना है, सिर्फ इसमें बताना है, लेकिन क्या वो बताते हैं कि क्या है जब हम यूज करते हैं तो सिर्फ एक्टिव वॉइस, ठीक है। पहले तो बात ऊपर से सिर्फ एक्टिव वॉइस के साथ डूअर होना चाहिए हमारा सब्जेक्ट, डूअर होना चाहिए, ठीक है। ये तो इनकरेक्ट, और ये इनकरेक्ट होने के इसमें जो रूल है वो एक्टिव वॉइस है और आपका सब्जेक्ट नॉन डूअर, ठीक है। दूसरा वाला इसलिए करेक्ट है क्योंकि इसके साथ हमने थर्ड वाला इसलिए करेक्ट